Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11. Today I am going to discuss the last topic of our book. Clear? So that is the exercise of chapter number 14, transport. So let's start. So dear students, start करते हैं question number 1 से, that is fill in the blanks. So the first blank is, in the process of facilitated diffusion, the carrier molecules are, तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया था, diffusion, that is a type of a passive transport in which there is a movement of molecules from an area of high concentration to low concentration without the expenditure of energy. But in facilitated diffusion, facilitate किया जाता है with the help of carrier proteins. Clear? So in the process of facilitated diffusion, the carrier molecules are proteins. Blank number 2, it says, pure water has water potential which is equal to 0. तो maximum water potential किसका होता है? Pure water का, और उसको हम reference के तौर पर कितना consider करते हैं? 0. Now the blank number 3, it says, the insects which feed on the phloem of the plants are aphids. याद होगा आपको, ठीक है? Aphids जो होते हैं वो phloem feeders कहलाते हैं. Blank number 4, it says, the substance produced by the basophils which inhibit blood clotting is. तो आपको याद है कि बेसोफिल्स जो कि वाइट ब्लड सेल्स की टाइप है ग्रेनुलोसाइट्स में, और इसमें दो तरह के केमिकल्स रिलीज होते हैं, हेपरिन एंड द हिस्टामिन. हिस्टामिन जो है ये इन्फ्लेमेटरी केमिकल है, और जो दूसरा जो ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है वो हेपारिन है. सो द आंसर फॉर दिस ब्लैंक इज हेपारिन, दैट प्रिवेंट्स द ब्लड क्लॉटिंग. जब तक ब्लड वेसल के अंदर रहेगा तो ये हेल्प करेगा ये वाला केमिकल, ताकि ब्लड जो है ब्लड वेसल के अंदर क्लॉट ना हो सके. नाउ द ब्लैंक नंबर 5, इट सेज, द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड ऑफ द ब्लड प्लाज्मा ऑफ मैन इज. तो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद है हमने ब्लड की कंपोजिशन की थी, दो मेजर कंपोनेंट्स हैं, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स. प्लाज्मा 55% है और ब्लड सेल्स 45% हैं. और प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ है? यस, व्हाट इज़? तो उसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, वाटर एंड डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस. तो सबसे ज़्यादा 55% का 90% क्या था? वाटर. सो द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड ऑफ ब्लड प्लाज्मा ऑफ मैन इज water. Dash in 1874 suggested that water molecules move along the cell walls of xylem vessels due to imbibition. तो याद होगा आपको Sachs. So SACKS, Sachs in 1874 उसने suggest किया था ये. Question number 2, it says, each question has 4 options and circle the correct answer. So this is a multiple choice question. The first question is, which of the following is not true of guard cells? तो नीचे दी गई 4 स्टेटमेंट्स में से हमने ये देखना है कि गार्ड सेल्स के हवाले से कौन सी स्टेटमेंट गलत है. नॉट ट्रू याद रखना है. सो अल्फा ऑप्शन इज, they are present in the epidermis of leaf. Yes, it is true. Beta option, they are connected with plasmodesmata with the other epidermal cells. No, my dear students, यही बात है जो हमने खास तौर पर पढ़ी थी कि गार्ड सेल्स वाहिद ऐसे सेल्स हैं जो आसपास के एपिडर्मल सेल्स से प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए कनेक्टेड नहीं होते. सो दिस इज नॉट ट्रू अबाउट दिस स्टेटमेंट. सो दिस इज द आंसर, बीटा ऑप्शन. चार्ली ऑप्शंस, दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट. यस, दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट. डेल्टा ऑप्शन, they are kidney shaped. Yes, they are kidney shaped. So only statement which is not true about the guard cells is beta option, that they are connected with the plasmodesmata with the other epidermal cells. MCQ number 2, it says, the Casparian strips are present in. तो जी dear students, Casparian strips कहाँ पर थी? याद है आपको? So let's have a look on the options. Alpha option is cortex cells of the roots. No. Beta option is endodermis cells of the roots. Charlie option is cells of pericycle, and delta option is cells of phloem. So the correct answer is the cells of endodermis of roots. ठीक है, roots के जो उनसे endodermal cells होते हैं, endodermis के सेल, वहाँ पर उनकी सेल वॉल्स में होती हैं Casparian strips, जो कि सेल वॉल यानी कि जो एपोप्लास्ट पाथवे है उसको ब्लॉक कर देते. MCQ number 3, it says, lymph most closely resembles with. तो हमने lymphatic system पढ़ा, उसमें lymph भी पढ़ा. lymphatic system का जो fluid circulate करता है उसको हम lymph कहते हैं.
तो ये सबसे ज़्यादा किससे रिजेंबल करता है? ठीक है, तो अल्फा ऑप्शन इज ब्लड, बीटा ऑप्शन इज प्लाज्मा, चार्ली ऑप्शन इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड डेल्टा ऑप्शन इज यूरिन. So the correct answer for this question is Charlie. That is interstitial fluid. तो ये उससे ज़्यादा resemble करता है. MCQ number 4, it says hydrathodes are associated with. Hydrathodes आपको पता है ये special pores होते हैं grasses में और जो lower plants होते हैं जहाँ से वो रात के वक्त जब transpiration कम हो जाती है तो रूट प्रेशर के ज़रिए यहाँ से वो वाटर जो है उन ख़ास किस्म के सुराखों तक पहुँचता है और ये किससे एसोसिएटेड है? सो होपफुली आपको याद आ गया. सो लेट्स मूव टू द ऑप्शंस. सो अल्फा ऑप्शन इज ट्रांसपायरेशन, बीटा ऑप्शन इज गटेशन, चार्ली ऑप्शन इज कंडक्शन एंड डेल्टा ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव. सो द करेक्ट आंसर इज यस, यू आर राइट, बीटा ऑप्शन, दैट इज गटेशन. MCQ number 5, it says according to the pressure flow theory which of the following serves as a sink. तो आपको याद है ना, वो सोर्स एंड सिंक. सोर्स जो आते हैं वो फोटोसिंथेसाइजिंग ऑर्गन्स को कहा जाता है. सिंक जहां पर फूड स्टोर होता है उसको हम सिंक कहते हैं. सो देखते हैं. अल्फा ऑप्शन लीव्स, बीटा ऑप्शन इज स्टेम, चार्ली ऑप्शन इज रूट्स एंड डेल्टा ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव. सो द करेक्ट आंसर इज चार्ली, दैट इज रूट्स. तो रूट्स के अंदर आमतौर पर जो फूड होता है वो स्टोर होता है. अकॉर्डिंग टू प्रेशर फ्लो थ्योरी दे सर्व एज सिंक्स. MCQ number 6, it says Which of the following is true about mammals? तो mammals के वाले से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? Alpha option, they have right aortic arch only. तो dear student, that is not true. Right aortic arch birds में होती है. Beta option, they have left aortic arch only. Yes, it is true. हमारे अंदर सिर्फ एक ही aortic arch है और वो कौन सी है? Left. Charlie option, they have left and right aortic arches. No, we have only left. तो ये भी गलत. Delta option, they do not have aortic arch. No, we have aortic arch. So एक ही aortic arch और वो left aortic arch है. So the correct answer is beta option. Now, MCQ number 7, it says the process that most likely directly enables a root hair cell to absorb minerals by active transport and enables a muscle cell to contract is. दो चीजें यहाँ पर हमें बताई जा रही हैं. एक तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा मसल सेल कॉन्ट्रैक्शन. ये दोनों ही एक्टिव प्रोसेसेस हैं. ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए क्या चाहिए हमें? एटीपी चाहिए. वो एटीपी कहाँ से आएगी? वो सेलुलर रेस्पिरेशन से आएगी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड. तो चलते हैं उन ऑप्शंस की तरफ. सो अल्फा ऑप्शन इज सर्कुलेशन, बीटा ऑप्शन इज एक्सक्रीशन, चार्ली ऑप्शन इज रेस्पिरेशन एंड डेल्टा ऑप्शन इज एसिमिलेशन. सो ऑब्वियसली यू नो द करेक्ट आंसर इज चार्ली, दैट इज रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन होगी तो फूड ऑक्सीडाइज होगा तो उससे जो है वो एटीपी और हीट एनर्जी बनेगी. एटीपी विल बी यूज्ड इन द एक्टिव ट्रांसपोर्ट एज वेल एज द मसल कॉन्ट्रैक्शन. MCQ number 8, it says which of the following processes cause substances to move across membranes without the expenditure of cellular energy. तो आपको याद है ये हम पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं जिसमें एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती और सब्सटेंसेस हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द ऑप्शंस. अल्फा ऑप्शन इज एंडोसाइटोसिस, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. बीटा ऑप्शन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये भी डेफिनेट सी बात है, ये एक्टिव है. चार्ली ऑप्शन इज डिफ्यूजन एंड डेल्टा ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव. सो ऑब्वियसली डिफ्यूजन के लिए कोई एक्टिव मैकेनिज्म नहीं चाहिए होता. सो देयर इज नो एक्सपेंडिचर ऑफ सेलुलर एनर्जी. So the correct answer for MCQ number 8 is Charlie, that is diffusion. Now the last MCQ, it says cardiac muscle can be distinguished from the other muscle fibers because the cardiac muscle, आपको याद है मैंने कहा था कि एक आपको स्ट्रक्चर बताया था कार्डिक सेल में, मैंने कहा था अगर ये आपको ऑप्शन में आ जाए तो आंखें बंद करके निशान लगा देना कि ये कार्डिक सेल है. वो याद आया आपको? चलते हैं ऑप्शंस की तरफ. सो अल्फा ऑप्शन इज कंटेन ओनली एक्टिन, Beta option is voluntary action. No, they are involuntary. And Charlie option is lack regular arrangement of sarcomeres. And delta option is has intercalated discs. Yes, you are right. So correct answer is delta option, that is intercalated disc. Intercalated disc और किसी दूसरे न स्मूथ में है न skeletal muscle में. Clear? Now coming towards the question number 3.
write whether the statement is true or false, and if it is false, rewrite the statement or write the correct statement. So first statement is, the intercellular openings in blood capillaries are larger than the openings in the lymph capillaries. तो dear students, this is false statement. आपको पढ़ाया था मैंने कि lymph capillaries के अंदर जो स्पेसिस है वो बड़ी होती हैं as compared to the blood capillaries. तो इसको रिवर्स करेंगे. करेक्ट स्टेटमेंट क्या बनेगी? The intercellular openings in the lymph capillaries are larger than the openings in the blood capillaries. Now, statement number 2. Between the left auricle and the left ventricle in the human heart, the valve present is called tricuspid valve. So, dear students, it is false statement. Tricuspid valve right atrium और right ventricle के दरमियान में होता है. Left atrium और left ventricle के दरमियान ट्राइकस्पिड नहीं बल्कि बाइकस्पिड या फिर इसको हम माइट्रल वाल्व भी कहते हैं, वो मौजूद होता है. सो द करेक्ट स्टेटमेंट बिकम्स, between the left auricle and the left ventricle in the human heart, the valve present is called bicuspid valve. Clear? Now the statement number 3, it says, the pacemaker of heart of man is the AV node. So that is again incorrect. This is false statement. So जो natural pacemaker हमारे हार्ट का क्या है? That is sinoatrial node, SA node, not the AV node. तो correct statement क्या बनेगी? The pacemaker of the heart of man is the SA node. Now statement number 4, it says, each sieve tube member is associated with one or more tracheid cells. So that is false. Tracheids, they are present in the xylem. हम यहाँ पर बात कर रहे हैं sieve tube member मतलब phloem की. So फ्लोएम के साथ ट्रेकीड्स नहीं होते बल्कि कंपेनियन सेल्स होते हैं जो इनको प्रोटीन्स और एनर्जी जो है वो सप्लाई करते हैं. सो ईच सीव ट्यूब मेंबर इज एसोसिएटेड विद वन और मोर कंपेनियन सेल्स. नाउ द लास्ट स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट नंबर 5. इट सेज द मेथड ऑफ एक्टिव इम्यूनाइजेशन is used to combat active infections of tetanus and rabies. तो dear students, एक्टिव इम्यूनाइजेशन क्या था कि हम या तो वैक्सीनेशन करवाएं जिसको आर्टिफिशियल इंड्यूस्ड कहा था, या फिर नेचुरली अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसे नेचुरली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी कहा था. तो ये तो नहीं चलेगा क्योंकि ये जो डिजीज़ ये तो ख़तरनाक है, रेबिस भी और टेटनस भी. ये अगर इसको मौका दिया कि हमारी इम्यूनिटी इसके साथ लड़े तो फिर तो ये जानलेवा साबित हो सकते हैं. ठीक है, तो इसमें एक्टिव इम्यूनाइजेशन नहीं बल्कि पैसिव इम्यूनाइजेशन होती है. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. So the correct statement becomes, the method of passive immunization is used to combat active infections of tetanus and rabies. जी तो डियर स्टूडेंट्स, यूँ हमारा सफ़र अख्ताम को पहुँचता है. उम्मीद है कि आपको बायोलॉजी क्लास 11 यानी कि ग्रेड 11 समझाने में मैं कामयाब हुआ हूँगा. उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी. सो किसी किस्म की कमी बेशी उसके लिए माजरत, और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.